क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम सब जीडीपीआई वैट की प्रिपरेशन में करते हैं? Can we outline some common mistakes? Hi guys, I'm Prashant and I'll take you through a set of mistakes that most aspirants make, and unfortunately they do this every year. It's the same mistakes which are committed by a different set of people every year. We see this every year. So I'll give you some insights, I'll give you some advice. What action you take on this advice, completely up to you. But I'll give you that advice from a position of from a position where I'll try to be as honest as possible. बाकी तुम्हारे ऊपर है कितना तुम इम्प्लीमेंट करते हो. तो पहली ऐसी चीज, विल डायरेक्टली गेट इनटू द मीट ऑफ इट, राइट? पहली ऐसी चीज, you ignore your profile, right? You do not align your answers with respect to your academics, your work your internships. Why am I repeating the pronoun your yahan pe again and again? Because very often what happens is we begin to focus on other people and the answers that they are building. Oh, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये चैट जीपीटी ने बड़ा सुंदर लिखा, लेट्स टेक इट, लेट्स अब्सॉर्ब इट, लेट्स ब्रेक इट, तोड़ मरोड़ के हम इसको अपना आंसर प्रेजेंट कर देते हैं. When you do that kind of an activity, you lose your own voice and then you are just parroting what someone else wrote or someone else thought, might be AI as well. So should not do that. You need to discover your own voice, right? Then most students, right, these two questions, when you ask them, they are stumped. Why MBA, why now? और फिर वो जेनेरिक आंसर्स की बारिश शुरू हो जाती है, वही सेम कट कॉपी पेस्ट आंसर्स, वाई एमबीए वाई नाउ. बिकॉज हमें एक चीज रियलाइज होती है, जब हमने कैट की तैयारी करी थी तब तो हमने बड़ी मस्ती से डिसीजन ले लिया था. आसपास वाले लोगों को देखा, सबने बोला पैकेज बड़ा सही लगता है बाबू भैया, कर लो एमबीए, और हमने करनी शुरू कर दी उसकी तैयारी. पर हमने एक्चुअली सोचा ही नहीं हमारा एक्चुअल मोटिव क्या था. Because of that, because of what we saw around us and what influenced us in making that decision, probably we never sat down and truly analyzed why are we doing, why have we taken up this course of action in the first place. Very important, again, boils down to what? Boils down to self-awareness. This process is, GDPI VAT is my favorite time of the year. This is the time when you get in touch with your true self. When you get in touch with your true self, you find answers, you find dimensions to your own self which you thought never existed. That's the kind of revelations that happens. It is the time of Christmas, so it is the time of revelations. I'm revealing some these are small little facets, but they hold immense value, right? So now that is something that happens. Then you underselling your real examples, real experiences. क्यों? क्योंकि हमें दिखानी होती है बड़ी बड़ी चीजें. मुझे कौन से अवार्ड मिले, मुझे कौन से सर्टिफिकेट मिले, मुझे कौन सी ट्रॉफी मिली, मैं पोडियम पे कब खड़ा हुआ, मैं वो दिखाना चाहता हूँ. बट अपने रियल लर्निंग के एक्सपीरियंसेस हम उसमें कई बार भूल जाते हैं. वी गेट सो डिस्ट्रैक्टेड बाय the shiny objects. I call this the shiny object syndrome, राइट? SOS. यहाँ पे शाइनी ऑब्जेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करती है, आप उनकी तरफ भागते हो, आप मीट जो जो असली मुद्दा है उसको भूल ही जाते हो. सो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे प्रोफाइल से रिलेटेड है, जो तुम इग्नोर करते हो स्टेप 1 में. अगले में, नॉट ओनिंग अप टू योर फेलियर्स. लाइफ में एक चीज जो कॉमन है अक्रॉस एवरी पर्सन हु हैज लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट, और ये मैं बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट देने वाला हूँ, यू कैन take up the cudgels and come and fight with me on this. There is no person on this planet who has not failed. That's the fundamental reality of life. Pick up the biggest of people. Ratan Tata, his dream pet project Nano failed. Mahatma Gandhi, he went through his own learning experiences in South Africa. Elon Musk, SpaceX had so many failed launches. So हर बंदे के लाइफ में फेलियर आता ही आता है. कॉमन एलिमेंट है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो हमारे जीने का मतलब है, जो लिव्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है. मेरा और तुम्हारा जो कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उसमें एक कॉमन चीज पता है क्या है? तुम भी फेल हुए होगे लाइफ में, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूं, और हमारे बीच में एक सक्सेसफुल आदमी और एक अनसक्सेसफुल आदमी को यही चीज डिफरेंशिएट करती है कि आप उस लिव्ड एक्सपीरियंस से क्या सीखे. क्या आपने उस फेलियर के बाद अपने आप को वेस्ट कर दिया, या आपने अपने आप को डेवलप किया उस फेलियर के बाद? दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, राइट? ट्रू सक्सेस और फेलियर.
अपने फेलियर्स को ओन अप टू देम। अगर तुम्हारा कैट में लो स्कोर था तो भाई इंस्टीट्यूट ने कॉल दे दी है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो उनका क्राइटेरिया था मीट हो रहा है। गैप है, हाँ गैप था, क्यों था वो बताओ, ठीक है। डरो मत, उसको छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। जहां जहां फेलियर्स हुए, एकेडमिक्स में लो स्कोर्स हैं, कहीं पे कैट में लो स्कोर्स हैं, कहीं पे गैप्स हैं, ऐसी चीजें जो भी हुई तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कुछ साल पहले जो जिसकी मल्टीपल रीअपीयर्स थी इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब क्या कर लोगे, उसने 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में पूरी करी है, क्या कर लोगे तुम, ठीक है। अल्टीमेटली वो बंदा एक आईएम में गया, एक बेबी आईएम में गया, ठीक है। कोई इसमें झूठ नहीं है कि वो टॉप पोस्ट इंस्टीट्यूशन में चले गया, बट बेबी आईएम में वो पहुंचा कैसे, बिकॉज ही ओन्ड अप टू हिज फेलियर्स। उसने ये नहीं बोला कि वो 2 साल जो मैंने लूज करे मैंने, और उसके अंदर ड्रिल डाउन करी, ये नहीं बोलना कि सर वो टीचर की वजह से हो गया, वो दोस्त की वजह से हो गया, ये फलाने की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। जब भी तुम एक्सटर्नल लोकाई, राइट, एक्सटर्नल रीजंस के ऊपर ब्लेम प्लेस करते हो तो तुम क्या करते हो, अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ रहे हो, राइट। तुम कह रहे हो मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल, दुनिया बुरी थी इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। नहीं करना, जो मैंने किया मेरे साथ हुआ, मैं उसको मानता हूँ और उससे मैं सीखा और मैं आगे ग्रो करा। एक सिंपल सा फंडा है, अपने दिमाग में इसको इसको घर कर लेना चाहिए, राइट। सो ओन अप टू योर फेलियर्स, ठीक है। अब तीसरी चीज, अब यहाँ पे तो थोड़ा आते आते मैं ही थकना शुरू हो गया हूँ, ठीक है। अब ये वाली चीज ऐसी है जहां पे तुम बोलोगे सर खेल गए ना गेम, अब आप अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हो इसलिए आप ऐसी एडवाइस दे रहे हो। भाई तुम कोर्स जो मर्जी ले लो, बट एक चेक करना कोई भी जीडीपीआई वैट कोर्स लेने से पहले किस टाइप की मेंटरशिप और एडवाइस मिल रही है। अगर हर हफ्ते तुम्हारा इंटरव्यू पैनल चेंज होने वाला है और डिफरेंट सेट ऑफ मेंटर्स, सारे जो ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन पे इंटरव्यूज होते हैं, 6 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू हो जाएंगे तुम्हारे, बट हर हफ्ते नया बंदा तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। कॉमन सेंस है, अगर हर हफ्ता तुम्हारा सेम बंदा इंटरव्यूज नहीं ले रहा, या पैनलिस्ट में मेंटर्स में एक बंदा जो तुम्हारा मेंटर है उस प्रोसेस में कॉमन नहीं है, हर हफ्ते एडवाइस चेंज होगी। हर हफ्ते जब तुम यूट्यूब चैनल चेंज कर देते हो, इस वाले की जगह ये वाला यूट्यूब चैनल से देख लो, इस पे ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसकी एडवाइस सुननी शुरू कर देते हो, क्या तुम्हारा ट्रैक चेंज हो जाएगा। बच्चों ने किया है, मेरे साथ भी हुआ है। इंट्रोडक्शन पूरा YMBA सारा कुछ डिस्कस किया, मॉक इंटरव्यूज करे, फिर कहीं और गए, वहां पे बोला यार ये क्या तुम्हें करा दिया है, ऐसे करो, अगले हफ्ते वो वापस वहीं चले गया जहां वो पहले था, ठीक है। फिर उसके इसमें बहुत सिंपल सा फंडा होता है, यार तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो, ठीक है। मैं यू कैनॉट स्पून फीड एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट, कैन नॉट हैपन, आपकी चॉइस है, ठीक है। फ्री इंडिविजुअल हो, फ्री विल एग्जिस्ट करती है, इस कंटेक्स्ट में तो करती है, ठीक है। जिंदगी के दूसरे मुद्दों के बारे में अलग फिलोसॉफिकल डिबेट है, पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सिंगल मेंटर रखना चाहिए। अब तुम्हारे एसेज है यार, 12 हफ्ते का प्रोसेस है, उसमें तुम कैसे ग्रो करें, अगर एक बंदा चेक नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा क्या गलतियां थी जो पहले करते थे और जो अब करते हो। इंटरव्यूज में क्या गलतियां थी जो पहले करते हो और अब करते हो। मैंने जो वर्ड पंडित का कोर्स बिल्ड किया है उसमें तुम किससे मेंटरशिप लोगे, तुम मेरे से ही लोगे। हमारी तो, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ यार, मजबूरी है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बॉय हूँ, मैं ही इस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हूँ, ऑफिस बॉय से सीईओ तक सब मैं ही हूँ, तो मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा, मेरे साथ ही बात करोगे। आई विल आइडेंटिफाई फ्लॉज, सो इफ यू बिलीव इन दैट तो यू टेक अप आवर कोर्स, इफ नॉट take up anyone else's course, anyone else who is logical and adopts this approach, right? हर्ड मेंटालिटी, बैचेस में जाके पढ़ना, इस केस में बैचेस में बैठ जाना, बैचेस में बैठने से पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है मुझे तो ये समझ नहीं आता, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोसेस है, 1 to 1 बात करने की बात है। मेंटर में, इसमें मैं तुम्हें सच्ची में ऐसी ऐसी किस्से हैं मेरे पास पिछले 5 साल में, लोग इसमें प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, अगर तुम इस टर्म का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके लाइफ के बारे में बहुत प्राइवेट है, उनके लाइफ के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, बच्चे शेयर करते हैं, वो मेंटर के पास ही रहते हैं, वो बताते हैं हमारी लाइफ में ये चीजें हुई, अब इनका सोल्यूशन बताओ। वहां पे यू नीड अ ट्रस्टेड सोर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट दीज थिंग्स। सो मेक श्योर यू फाइंड अ गुड मेंटर फॉर योरसेल्फ, राइट। कैन बी योर सीनियर, कैन बी अ कोर्स you buy, can be a professional that you hire, up to you. How do you decide to go about it, right?
बट एक चीज याद रखना, वन साइज फिट ऑल टिप्स नहीं वर्क करते हैं, ठीक है। हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, एक्सप्लोर करो, ढूंढो आंसर्स। कॉपी पेस्टिंग आइडियल आंसर्स नहीं, ये भी नहीं करना है हमने। दुनिया के आंसर्स उठा उठा के हमने फेंक दिए। लूजिंग योर पर्सनल वॉइस इन द प्रोसेस नहीं करना है। और हर हफ्ते हमें यूट्यूब चैनल्स नहीं बदलने हैं, हर हफ्ते हमें अलग अलग जगह पे नहीं जाना है, दिक्कत हो जाएगी। सो जहां से भी पढ़ो, जैसे भी तैयारी करो, बी कंसिस्टेंट, बी कोहेरेंट, बी लॉजिकल। दैट इज हाउ यू शुड गो अबाउट योर GDPI एंड बैट प्रेपरेशन।